बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। कल एक बहुत ही बड़े अदाकार जो कि हम कहेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत ही बड़े एक्टर, लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र जी की डेथ हुई और उन्हीं से रिलेटेड हम लोग वीडियो देखने जा रहे हैं। टाइटल क्या बताएंगे मौजम? टाइटल है बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र पासिस अवे एट द एज ऑफ 89, विंटेज विद पलकी शर्मा। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ही मैन। How do you measure a life in cinema? In films, in awards, or in the way millions of people feel when they hear a name? Today, that name is Dharmendra. He was one of India's biggest film stars. For more than 60 years, he defined what a Bollywood hero looked like. Just saying his name brings back memories of Sunday afternoons watching his iconic films, of dialogues people still repeat, and of a man who made heroism feel warm, human, and real. He was called the He-Man of Bollywood. But what made him unforgettable was not just his strength, it was his heart, his simplicity. Today, at the age of 89, Dharmendra has passed away, and Indian cinema will never quite feel the same. At First Post, we offer our deepest condolences to his family and to the millions who grew up loving him. Indian cinema has lost one of its brightest lights. A man who shaped the childhoods of millions. A man whose smile, voice, and presence defined what a hero felt like for more than 60 years. Dharmendra passed away in Mumbai today at the age of 89. He spent his final days at home, surrounded by family, after weeks of fragile health. For many people, the news has felt like losing someone from their childhood. Because Dharmendra was never just a star on a poster. He was a presence welcomed into homes and into memories. His journey began in 1935 in Punjab's Ludhiana district. He was raised in a humble Jat Sikh household where his father was a school teacher. Life was modest, but his imagination was large. He watched his first film as a teenager and felt an instant pull towards that world. That feeling carried him to a national Filmfare talent contest, which he won. It brought him to Mumbai, then called Bombay, with little more than hope and courage. And it slowly turned a young man from a small village into one of Indian cinema's most loved heroes. His early films helped him and his footing. Then Fool Aur Patthar revealed a leading man who could be intense and gentle in the same moment. From there, his career took off. Yadon Ki Baarat, Mera Gaon Mera Desh, Sita Aur Geeta, Dream Girl, Sholay. One performance after another carried the ease and warmth that audiences loved. Many of his dialogues became part of everyday conversation. People still repeat them because he delivered them with honesty and heart. Across genres, he remained effortless. Humor in family dramas, sincerity in action, and tenderness in romance. Audiences connected with him instantly. Beyond the silver screen, his personal life also captivated the nation. And over time, his family became one of Hindi cinema's most recognizable families. There was also a brief period in public service. He served as Member of Parliament from Bikaner between 2004 and 2009. But he eventually returned to the world that felt closest to him. In his later years, every appearance carried a sense of nostalgia. Each film reminded audiences of the screen legend they had grown up admiring. In a way, his story continues beyond today. His final performance in Ikkis will be released this December. It is the last glimpse of a man who gave 6 decades of his life to the craft he loved. Dharmendra was honored with the Padma Bhushan in 2012. He also achieved the Filmfare Lifetime Achievement Award. But he often said that the affection of ordinary people mattered more than any accolade. Within minutes of the news breaking, that affection poured forth. President Draupadi Murmu said his legacy will inspire generations. Prime Minister Narendra Modi said his passing marks the end of an era. Actors from every decade shared memories of kindness, warmth, and generosity.
Dharmendra's journey was never only about fame. It was about a boy who dreamt big, a man who stayed grounded, and an artist whose warmth made millions feel like family. ऐसे लोग जिन्हें आप बचपन से जो है वो देखते आ रहे हो, उनकी मूवीज़ आपने देखी हो, नो डाउट आपका उनके साथ एक जो है वो कनेक्शन जो है वो बन जाता है। और जब वो इस दुनिया से जाते हैं ना, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक उस टाइम ना होती है आप सिचुएशन इस तरह की कि ये कैसे जो है वो हो सकता है, क्योंकि हम देखें धर्मेंद्र जी की, हालांकि वो हमसे यानी कि काफ़ी देर पहले की जो है वो मूवीज़ जो है वो में आ रहे हैं, लेकिन उनकी मूवीज़ आप देखते हैं ना, आपको अच्छा लगता है उस टाइम की मूवीज़ देखकर, आपको जो है एंटरटेनिंग लगती हैं, आपको एक उनके साथ कनेक्शन जो है वो नज़र आता है। मुझे लगता है एक आर्टिस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है सोसाइटी में, और स्पेशली हमारे जैसे आम लोगों की ज़िंदगी में, क्योंकि वो हमें हंसाते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन भी बनते हैं, हमें इमोशनल भी करते हैं। मुझे मतलब ये लगता है कि क्योंकि जिस तरह का इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक हम कहें कि लोगों का मजाज है, यहाँ पर कलाकारों का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है लोगों की ज़िंदगियों में, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं अदाकारों को, कलाकारों को। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो शायद शुरू से हम देखें, हम अपने बड़ों को देखते आ रहे हैं, फिर आगे से जनरेशन टू जनरेशन यही चीज़ पास ऑन होती जा रही है कि आपकी एक कनेक्टिविटी, एक अटैचमेंट जो है वो हो जाती है एक्टर्स के साथ। धर्मेंद्र जी की बात करें तो अनडाउटेडली उनका जो एक ऑरा था और जिस तरीके से उनकी एक परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखी है, उसमें आपको ह्यूमर भी नज़र आता है, उसमें आपको अग्रेशन भी नज़र आता है। मतलब एक वो जैसे उनको टाइटल मिला है ही मैन वाला, वो बिल्कुल उनके ऑरा में आपको वो चीज़ जो है वो नज़र आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी के जाने के बाद ये बात बोलते कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स तो इतने लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए होते हैं ना, कि वो अपने बहुत सारे अच्छे कर्म तो इसी तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर जा रहे हो इस दुनिया पर, फिर उसकी आप कह लो कि जो उसकी यादें हैं वो लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वो इमॉर्टल ही बन जाते हैं आपके लिए, कि आप उनको कभी भुला नहीं पाते और सदियों तक लोग उनको याद रखते हैं। इसमें अगर देखा जाए ना तो भाई एक्टर्स जो अपनी पूरी ज़िंदगी कमाते हैं ना, वो ऑडियंस का प्यार होता है। True. जो लोग उन्हें देखते हैं और उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि एक एक्टर जो है ना, वो उसकी मैं कहता हूँ ज़िंदगी की कमाई ही जो है वो यही होती है कि वो जब पर्दे पर है तो लोग उसको कितना प्यार कर रहे हैं। अगर वो पर्दे से जो है वो चला गया हुआ है, नहीं मूवीज़ में आ रहे, तो लोग उन्हें जो है वो कितना याद जो है वो करते हैं। हालांकि लास्ट मूवी मैंने उनकी जो है वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो है उसमें जो है उन्हें देखा है, हालांकि एक काफ़ी ज़्यादा उनकी एज होगी हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें उन्होंने एक्टिंग जो है वो बहुत अच्छी जो है वो की। उससे पहले मैंने थोड़े थोड़े ग्लिम्स जो है ना वो मूवी जो है अपने तो अपने होते हैं वो देखे हैं, और बहुत इमोशनल मूवी जो है उसमें वो सीन्स वगैरह हैं। अच्छा, मैंने मूवी नहीं वो देखी। मैंने मूवी नहीं देखी, लेकिन कुछ सीन्स जैसे आप फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो वहाँ पर आ जाते हैं, तो आप फिर वो देखते हैं। बाकी हम यही कहेंगे कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को जो है वो शांति दें, और उनके फैमिली के लिए ये बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है। हाँ, क्योंकि और इस समय ऑब्वियसली मुझे लगता है कि एक प्राइवेसी भी जो है फैमिली की वो मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि एक टाइम लगता है इतने बड़े धचके में से निकलने के लिए। और अगर हम लोग जैसे सनी देओल, बॉबी देओल सर की भी बात करें तो वो लोग भी मतलब एक बड़ी अच्छी उनकी फैमिली बॉन्डिंग जो है वो नज़र आती है, अपने फादर के साथ बड़ी अच्छी एक बॉन्डिंग उनकी नज़र आती है। मैंने एक क्लिप देखा था कल जिसमें जो है बॉबी देओल वो काफ़ी ज़्यादा आपको भावुक जो है वो नज़र आ रहे थे। सो बस यही हम प्रार्थना कर सकते हैं कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, और जितने भी उनके फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, उनको इस टाइम में हौसला दे और हिम्मत दे। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। गुड बाय।